شوال کے مختلف مقامات سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم 1445 ہجری 10 اپریل 2024 بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ۔ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ ملک بھر میں آج عید الفطر جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ اسلام آباد میں چیئرمین مولانا عبدالخبیر کی زیر صدارت رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس۔ پورے ملک سے چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہونے پر عید الفطر منائے جانے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا زونل کمیٹیوں سے بھی چاند نظر آنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ سعودی عرب سمیت زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ایک ہی روز عید سے اتحاد کا پیغام جائے گا۔ چاند رات پر بازاروں میں رش، ہر کوئی خریداری جلدی مکمل کرنے کا خواہش مند۔ دکاندار بھی آخری لمحات میں زیادہ سے زیادہ کپڑے جوتے بیچنے کے لیے بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ خواتین کو تجاری نامکمل رہنے کا ڈر، کپڑے، چوڑیاں اور جیولری خریدنے کے بعد اب مہندی لگوانے کی تجاری۔ درزیوں کے لفٹ نہ کرنے پر مرد حضرات نے ریڈی میڈ سوٹ خرید لیے۔ والدین عید پر بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار۔ So I hereby declare Senator Syed Yousafzai Gilani to have been elected as Chairman Senate. سینٹ الیکشن میں حکومتی اتحاد کی یک طرفہ فتح۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین اور سردار سید آل ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب۔ عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ مقررہ وقت تک دونوں کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ ایوان سے پہلے خطاب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی آپ دیدہ کہا تمام ججوں کا تعاون کرنے پر ان کا مشکور ہوں، پورے ایوان کا چیئرمین ہوں، سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ سینٹ اجلاس میں 41 نو منتخب سینیٹرز نے بھی حلف اٹھایا۔ پیپلز پارٹی کے 18، نون لیگ کے 14 اور جے یو آئی کے 3 ارکان نے حلف لیا۔ دونوں منتخب سینیٹرز فیصل وابڈہ اور مولانا عبدالواسع نے حلف نہیں اٹھایا۔ پریزائڈنگ افسر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ارکان سے حلف لیا۔ سینٹ اجلاس میں شور شرابہ، حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ پی ٹی آئی سینیٹرز کے چوری کا الیکشن نامنظور کے نعرے۔ چیئرمین ڈائس کے سامنے احتجاج۔ پی ٹی آئی کے الیکشن چور کے جواب میں گیلریوں سے گھڑی چور کے نعرے۔ اجلاس کے آغاز پر ہی پی ٹی آئی کے علی ظفر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا یہ نامکمل سینٹ ہے، اس لیے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ کے پی کی نمائندگی کے بغیر انتخاب سے وفاق کو نقصان ہوگا۔ جب تک کے پی اراکین حلف نہیں اٹھا لیتے سینٹ مکمل نہیں ہوتا۔ کسی قسم کا الیکشن اخلاقی اور آئینی طور پر ناجائز ہوگا۔ ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پریزائڈنگ آفیسر انتخاب مؤخر کریں۔ پی ٹی آئی ارکان کا وزیر قانون کو فلور دینے پر اعتراض۔ پریزائڈنگ افسر نے پی ٹی آئی کے اعتراض کو مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوئے۔ نو منتخب اراکین نے حلف لینا تھا مگر ان سے حلف نہیں لیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا ایوان میں اظہار خیال، کہا الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا حلف برداری تک سینٹ انتخابات خیبر پختونخوا میں ملتوی کیے جائیں۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کا دورہ کامیاب رہا۔ 14 اپریل کو واشنگٹن جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کے خد و خال طے کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا تمام صوبوں کی مشاورت سے کام کریں گے۔ سعودی عرب کا پاکستان کے مرکزی بینک میں ڈپازٹس $3 ارب سے بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی ولی عہد سے ملاقات میں سعودی عرب نے $5 ارب کے سرمایہ کاری منصوبے پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
हुकूमत की IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी करने की तैयारी। IMF का बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दाम का मुतालबा। तकसीमकार कंपनियों से बिजली चोरी न होने का बयान हल्फी तलब। पावर डिवीजन की जानिब से नए अहकामात तमाम डिस्कोस को भिजवा दिए गए। इलाके के तमाम मुतल्लिका अफसरान और अमले को फौरी बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को रिलीफ ना मिल सका। बानी PTI अडियाला जेल और बुशरा बीबी ईद सब जेल बनी गाला में गुजारेंगी। रिजवान अब्बासी एडवोकेट की गैर हाजिरी की वजह से सजा मुअत्तली पर फैसला ना हो सका। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स में कहा, अगर आइंदा समात पर शिकायत कुनिंदा पेश ना हुए तो सजा मुअत्तली पर फैसला सुना दिया जाएगा। हमें बहुत अफसोस हुआ। सलमान अकरम राजा का सेशन जज शाहरुख अर्जुमन से मुकालमा। इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर समात 15 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत की बुशरा बीबी के तिबी मुआयने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की मेडिकल टीम को रसाई देने से माजरत। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी का इलाज पिम्स अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स कर रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत ने बुशरा बीबी के तिबी मुआयने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से मेडिकल टीम भेजने की इजाजत मांगी थी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त कराची की मकामी अदालत ने मुस्तरद कर दी। पुलिस ने जवाब अदालत में जमा करवा दिया। दरख्वास्त अदालत के दायरा समात में नहीं आती। दरख्वास्त गुजार बानी PTI का खूनी रिश्तेदार नहीं। राना सनाउल्लाह ने जो अल्फाज कहे वो लाहौर में कहे, कराची में नहीं। अदालत की ऑब्जर्वेशन। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को जान से मारने की धमकी दी। खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब के नक्शे कदम पर एयर एम्बुलेंस शुरू करने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतल्लिका हुकाम को अगले 4 महीनों में सर्विस अमलन शुरू करने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। महकमा सेहत के इजलास में सूबे के गुंजान आबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स, नर्सों और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ की हमवक्त दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। यकतरफा फैसले हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। जमहूरी सिस्टम के तसलसल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन तसादुम और महाजराई का रास्ता इख्तियार करना चाहती है। हम किसी अफरा तफरी और फितना आलाकार नहीं बनेंगे। फैसले करने हैं तो जमहूरियत, मुल्क और आम आदमी के मुफाद के लिए करें। एक शख्स या जाती मुफाद के लिए किए जाने वाले फैसलों की हिमायत नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी की यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का एतमाद करने पर इजहार तशक्कुर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की चेयरमैन सेनेट बनने पर यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद। कहा, सेनेट इलेक्शन में मुफाहमत की सियासत फिर सुरखरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन से इनकार नजरियाती मुखालिफिन की एक और शिकस्त का बाइस बना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ईद के रोज कैदियों को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत। कैदी अहले खाना से ईद के अगले रोज भी सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मुलाकात कर सकेंगे। ईद के 2 दिन अहले खाना को फोन कॉल करने की भी इजाजत मिल गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल फितर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। कहा, मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाए। ईद उल फितर के इज्तिमात खुसूसन मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। सीनियर पुलिस हुकाम को चांद रात और ईद उल फितर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ईद की नमाज लाहौर में अदा करेंगे। सदर जरदारी बिलावल भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट समेत दीगर कायदीन आबाई इलाकों में नमाज ईद अदा करेंगे। मीठी ईद के मीठे पकवान। ईद का चांद नजर आते ही खवातीन ने घरों में पकवान बनाने के लिए किचन में ड्यूटियां संभाल ली। सवैयां, शीर खुरमा, खीर समेत मुख्तलिफ अंदाजो अकसाम के मीठे की तैयारियां शुरू। बाजारों में मिठाइयों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। लोग मेहमानों और प्यारों के लिए शीरीनी खरीदने में मसरूफ। शवाल का चांद नजर आते ही मोतकफ हजरात भी घरों को वापस पहुंच गए। घर वालों का फूलों हार के साथ वालेहाना इस्तकबाल।
रश देकर ट्रांसपोर्टर्स का बावलापन, मजबूरी का फायदा उठाने का धंधा अरूज पर। आखिरी रात किराए डबल से भी ज्यादा, अड्डा मालिकान ड्राइवर्स की मिली भगत, इंतजामी इकदामात की धज्जियां उड़ा दी। किराए महंगे हो गए तो क्या हुआ, ईद घर ही मनाएंगे। परदेसी जान जोखों में डालकर घर जाने को तैयार, ट्रांसपोर्ट अड्डों पर रश, सीटें ना मिलने पर मुसाफिर बसों और वैगनों की छतों पर सवार। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, ईद उल फितर के 3 दिन रेलवे किरायों में 25% रियायत का ऐलान। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेन की तमाम क्लासेस के लिए होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर इतलाक नहीं होगा, रियायत सिर्फ करंट टिकट पर होगी। पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा, तालीम और सेहत की खिदमात तक फराहमी में कमी। आलमी बैंक की रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफ। रिपोर्ट में बढ़ती हुई ट्रांसपोर्टेशन लागत के बायस स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सफरी लागत में इजाफे से इलाज मुआवजे तक रसाई ताखीर का सबब बन सकता है। नकलो हमल की लागत में इजाफे से स्कूल, सेहत मराकज, मार्केट तक रसाई के अखराजात भी बढ़ गए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को अखराजात जिंदगी के मुसलसल बहरान से 2-4 मुल्क भी करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की आम परवाज से सफर, एयरलाइन और सैकड़ों मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने वफ्द के हमरा PIA की जद्दा इस्लामाबाद परवाज PK 842 पर सफर किया। जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा शहबाज शरीफ और वफ्द के इंतजार में 2 घंटे खड़ा रहा। मुसाफिर 2 घंटे तक तैयारे में बैठे सरकारी वफ्द का इंतजार करते रहे। वापसी में तैयारा इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में उतार लिया गया। परवाज में 380 मुसाफिर सवार थे। सरकारी वफ्द 7 अप्रैल को PIA की जिस परवाज से सऊदी अरब गया उसे भी जद्दा के बजाय मदीना मुनव्वरा उतारा गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सोमोटो केस। जस्टिस जहजा अफरीदी ने केस की मजीद समाअत से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक जस्टिस जहजा अफरीदी ने तहरीरी हुक्मनामे में माजरत की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इजाफी नोट में तहरीर किया। तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जल्द जारी होने का इम्कान। जस्टिस जहजा अफरीदी ने नोट में लिखा, 6 जजेस ने खत में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात की। इंतजामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी तासुर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को मामला जुडिशल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। हाई कोर्ट के पास आइन के तहत इंतजामी इख्तियारात मौजूद। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या दीगर जजेस ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों को अखराजात की तफसीलात जमा कराने की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन इजरा के 60 दिन के अंदर कामयाब उम्मीदवार मुहिम के अखराजात की तफसीलात जमा करवाने के पाबंद हैं। सियासी जमातें तफसीलात मुजवजा फॉर्म 68 पर 22 अप्रैल से पहले जमा करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ ना लेने पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी। 14 दिन में जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट में PP की मेहर सुल्ताना मखसूस नशिस्त पर हल्फ ना लेने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा, अदालती अहकामात के बावजूद स्पीकर ने मेंबरान से हल्फ नहीं लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, हम स्पीकर को नोटिस जारी करते हैं, उनका जवाब आ जाए तो फिर इस केस को सुनेंगे। टैक्स रिटर्न्स जमा ना कराने वालों की सिम में ईद के बाद ब्लॉक करने का फैसला। FBR ईद के बाद इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी करेगा। PTA की मुशावरत से 4 लाख अंडर फाइलर्स की शिनाख्त कर ली गई। जराये के मुताबिक ये ऐसे अफराद हैं जिन्होंने काबिल टैक्स आमदनी होने के बावजूद अपने रिटर्न फाइल नहीं किए। FBR ने ऐसे अफराद को नोटिस भी भेजे थे, लेकिन उन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवाए। अब की बार ईद ठंडी होगी। ईद उल फितर पर बारिशों के इम्कानात। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। 10 से 15 अप्रैल के दरमियान वक्फे से बारिशें होंगी। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक और चकवाल में बारिश के इम्कानात। गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा में भी बादल बरसेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी के भी इम्कानात। रेस्क्यू इदारों और जिला इंतजामिया को ईद की छुट्टियों में भी अलर्ट रहने की हिदायत।